Good morning and welcome back to the Business Statistics Online lecture. Thank you so much for joining me for this session. Today we are going to understand types of data and data collection methods. So basically अलग-अलग तरीके के types या data के types क्या है और data collection के methods क्या है. So data are collected of any number of related observation. We can collect the number of telephones that workers install on a given day that one worker install per day over a period of several days, and we can call the results our data. So information can be collected in statistics using qualitative and quantitative data. So data is nothing but number of related observation. ठीक है. So example इन्होंने दिया है कि we can collect the number of telephones that workers install on a given day. Either वो per day per worker हो सकता है या per day per group of workers हो सकता है. So anything which is in number as well as which is in quality. Now numbers के तौर पे देखा जाएगा तो जो ये कोविड-19 पैंडेमिक के जो डेटाज हमें आते हैं वो हमारे लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा है. XYZ नंबर ऑफ सिविलियंस या सिटीजन्स का हमने वैक्सीनेशन किया, इतने वैक्सीन पेंडिंग है, वैक्सीन के काउंट्स बहुत कम है, म्यूनसिपालिटीज में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है. दैट इज क्वालिटी. नंबर्स आएगा तो क्वांटिटी. एंड कोई नेचर या कोई ऐसा बिहेवियरल मोमेंट जो हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज नहीं करते, वो सारी चीजें क्वालिटेटिव में कवर करते हैं. Qualitative data such as eye color of a group of individuals is not computable by arithmetic relations. So they are labels that advise in which category or class an individual object or process fall. They are called categorical variables. So कोई भी ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हम लोग या अर्थमेटिक रिलेशन हम लोग नहीं फॉर्म कर सकते, these such type of data is known or called or treated as quantitative data. Now, quantitative data sets consist of measures that take numerical value like the ages of the student. So, quantitative data में हमें एक numerical values मिलता है जो measure करता है, which is like ages of the student. सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में एक ही फर्क है. अगर नंबर्स आएंगे तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है, नंबर्स के बिहाफ में कुछ और आएंगे तो वो क्वालिटेटिव डेटा है. कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा. The quantitative data can be classified as discrete data and continuous data. So discrete data consists of values which are separated from each other. Discrete data जो है वो हर एक वैल्यू से सेपरेटेड है. जैसे कि एग्जांपल्स हमें दिया है, मार्क्स ऑब्टेन इन अ टेस्ट बाय 30 स्टूडेंट्स. अब उस क्लास में 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन कितना पूछा उन्होंने? 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स पूछा है. नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल. सो कितने पेशेंट्स हैं वो डिस्क्रीट डेटा है. नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली, एक फैमिली में कितने मेंबर्स. Number of 100 motorists had to take their driving test before they passed. So continuous data. It consists of a numbers which can take any value within a given range. So it consists of numbers है जो कोई भी वैल्यू के साथ हम लोग एक रेंज को मेंशन करते हुए ले सकते हैं. So examples of discrete data are the height of 500 females, the time taken by 1,000 people to run a marathon. So basically these are not discrete data example, these are continuous data example, but कुछ typing error है वहाँ पे. So please जब read out करोगे पढ़ोगे तब वो error को ध्यान रखना. Then temperature at noon at 50 C centigrade. ठीक है, तो टेम्परेचर में एक मीडियम टेम्परेचर होगा, मिनिमम टेम्परेचर होगा, एक हाईएस्ट टेम्परेचर होगा. Now for better understanding compare the following box of a box of pencil. Now for better understanding, compare the following items. A box of pencil,
which contains an average of 12 pencils, a box of soft drinks which contains an average of 300 ml of liquid. So अब यहाँ पे कंपेयर करना है, एक बॉक्स ऑफ पेंसिल है जहाँ पे 12 पेंसिल है, एक बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक का जिसमें 300 ml ऑफ लिक्विड है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा. So there could be 11 or 13 pencil in the pencil box, but it could not be 12.23. However, boxes we open in the design must be whole numbers. So क्योंकि हम लोग बॉक्स निकालते हैं काउंट करते हैं तो वो होल नंबर में होना चाहिए, और पेंसिल्स बॉक्स के अंदर जो है वो डिस्क्रीट होता है. ठीक है. लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक है, in bottle of soft drink there could be 302.45 ml or 297.72 ml. These does not have to be a whole number of milliliters. However, many bottles we open and measure the contents. It is lawyers come from many countries range of number. Therefore, the value of the bottle of soft drinks are continuous data. So ये continuous data में ऐसा डेटा आता है जो कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है. आप चाहे कोई भी बॉटल उठा के ले लो, वहाँ पे कंटिन्यूटी आपको मिलेगा. 302.45 ml होगा या फिर 297.72 ml होगा, लेकिन कंटिन्यूस डेटा होगा. देन कलेक्शन ऑन डेटा. डेटा कलेक्शन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के डेटा कलेक्शन होते हैं. एक प्राइमरी डेटा, उसके अंदर भी अलग अलग मेथड्स है, और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स, उसमें भी अलग अलग सोर्सेस है. सो प्राइमरी डेटा व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड रिसोर्सेस. जैसे अभी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड ने पूछा कि भाई बहन दोस्त दोस्तनी लड़के लड़की कैसा था आज का लेक्चर, सर ने फिर वो बोर किया, सिर्फ रीड करते गए एक्सप्लेन करते गए, कुछ पूछा तुम लोग को, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए नहीं आए, क्या चल रहा है, देन यू विल रिवर्ट देम, गिव देम फीडबैक. जो हुआ वो आप बताओगे, दैट इज प्राइमरी डेटा. लेकिन आपने जो अपने फ्रेंड को बताया, उस फ्रेंड ने किसी और को बताया, now वो जो सेकंड पर्सन ने बताया, दैट बिकम्स secondary data because he was not there at that particular event, but still information gathering उन्होंने किया and information pass किया. प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड से. The investigator records his observation from the experiment or in a specific situation. This method is applied in science, medical science, and social science. Observation method basically सब जगह applicable होता है, बस उसका यूटिलाइजेशन अलग अलग जगह में होता है. एप्लीकेशन इज डिफरेंट एंड यूज एंड यूटिलाइजेशन इज डिफरेंट. एप्लीकेशन कैन बी forceful application, but use or utilization can be uh, on the basis of capability. देन क्वेश्चनर मेथड से भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. किसी को क्वेश्चनर भेज दिया और बोला कि आई एम डूइंग सो एंड सो रिसर्च वर्क, तो प्लीज गिव मी डेटा. सो फर्स्ट हैंड डेटा वो प्रोवाइड करेंगे आपको अपने एक्सपीरियंस नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ. देन इंटरव्यू मेथड, फिर इंटरव्यू भी ले सकते हो आप, और इंटरव्यू के थ्रू क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे. और इसलिए पॉलिटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स या इश्यूज हुआ, एक पर्टिकुलर पैनल आता है अलग अलग पार्टीज का, और वो पैनल क्या करता है, एंकर को आंसर्स देता है उनके क्वेश्चंस का. ठीक है. सो दैट इज इंटरव्यू मेथड. नाउ सेकंड इन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग और डेटा कलेक्शन सेकेंडरी, जहाँ पे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, बट उसे रेफर करके हमें फिर से गैदर करना है और स्ट्रक्चरली उसको सेव करना है. So, while collecting such type of information, we should observe authenticity of such sources. Some such sources are census report, government report, well-established magazine, annual report of companies, technical and trade journal. तो इस तरीके से हम लोग का secondary data gather होता है.